गुड मॉर्निंग किड्स। नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में अगला पॉइंट जिसका नाम हो जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या हो जाता है। ऐसा टोल्ड यू गाइस कि दो चीजें होती है हर एक कंपनी में, MOA और एक हो जाती है AOA। अगर मैं बात करती हूँ कंपनी के MOA की, जिसका मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की। अगर बात करते हैं MOA के, तो इस पर्टिकुलर चीज में होते हैं कंपनी के एम्स एंड टारगेट्स। अगर हम लोग बात करते हैं AOA की, तो AOA के अंदर होते हैं कंपनी के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब अगर मैं बात करती हूँ कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या होता है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये होता है कि जैसे कि जो भी कंपनी होती है उसके कुछ एम्स होते हैं, कुछ टारगेट्स होते हैं, और वो कंपनी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के वी कैन से बेसिस पे चल रही होती है। अब अगर हम बात करते हैं उस कंपनी के इंडोर मैनेजमेंट की, तो कोई भी कंपनी अपनी कंपनी का बेसिक इंफॉर्मेशन या उसके एम्स, उसके टारगेट्स या इन शॉर्ट उसके सीक्रेट्स जनरल पब्लिक के साथ में शेयर नहीं करना चाहती है। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो वो सिर्फ कंपनी के अंदर रखती है और कुछ चीजें आउटसाइडर्स के साथ में शेयर की जाती है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं आउटसाइडर्स, तो यहाँ पे आउटसाइडर्स हो जाती है जनरल पब्लिक या हमारे शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, या जितने भी बाहर जिनसे हमने कैपिटल रेज करके पैसे वसूले हैं, वो सारे लोग। यही हो जाती है हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कि बाहर वालों को उतनी ही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए जितनी की मतलब जितनी उन्हें नेसेसरी है या जितनी उनकी जानकारी के लिए काफी है। बाकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की उन्हें कोई जरूरत नहीं। Well, let's have a look toward it, guys. Exactly what is doctrine of indoor management? As I told you guys, कि two basic documents are there in each and every company. The first one is MOA. Now, MOA is a document which contains aims and targets, yeah, we can say objects of that particular company. Means whatever maybe, whatever the targets of company, yeah, we can say whatever aims of that particular company, the same should be recorded, yeah, the same should be entered in particular document, in particular file, in particular folder, and the same is called as memorandum of association, या in short form MOA उसे हम बोल सकते हैं। Move on toward the next side, guys, which is AOA. Now AOA is again a document, yeah, we can say it's a file which contains rules and regulations of that particular company, कि जिसमें ये रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए काम करने। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या हो जाता है। नाउ डू वन थिंग गाइस, कम ऑन पेज नंबर 55. नाउ doctrine of indoor management protects the interests of the outsider when they act based on the memorandum and articles of association. Doctrine of indoor management states that the person entering into a contract with the company need not inquire whether the company or its officers have properly followed the internal proceedings as stated in the articles. It is assumed that the company acts as per its memorandum and articles of association. Yes guys, if we talk about, we can say shareholders and debenture holders. So over here what happened now guys, कि it is assumed, we can say shareholders and debenture holders, they are assumed that the company is running as per MOA and as per AOA of that particular company. That's why they need not have to inquire, yeah, to gather the information about the company. And if we talk about doctrine of indoor management, so the same indoor management, yeah, we can say the same doctrine of indoor management over here, they are protecting, yeah, we can say the company is protecting the interests of all shareholders and debenture holders over here. Means whatever necessary information they need, yeah, they required, only that should be provided to them. और बाकी की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, नॉट नेसेसरी टू प्रोवाइड ऑल दिस स्टफ टू देम। ठीक है, ये था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। आइए नेक्स्ट वाला चेकआउट करते हैं, इसका अगला पॉइंट। Okay guys, now let's have a look toward the another one, which is prospectus.
चलिए, now before moving ahead, let me clear a concept with you कि exactly what is a prospectus. As I told you n number of times that it's a booklet, yeah, it's a small booklet which contains all information regarding your company, regarding your organization. Everything is very clearly mentioned in it so that everyone should aware about it. Before investing, we are talking about shareholders and debenture holders over here. So before investing in that particular company, person wants to know exactly what are the aims, what are the targets, what is the turnover, yeah, we can say what is the amount of capital they are having, and blah blah things. So the all should be clearly mentioned in this particular booklet या file, and the particular file is called or known as prospectus. जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक कंपनी क्या करती है, जैसे कि कंपनीज के टारगेट बहुत ज्यादा होते हैं, एम्स बहुत बड़े होते हैं, इसलिए कंपनीज के पास में शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर्स 1, 2, 10 इतने नहीं होते, थाउजेंड्स, लैक्स और क्रोर्स में होते हैं. इसीलिए हर किसी बंदे को कंपनी की इंफॉर्मेशन शेयर करना इट इज इम्पॉसिबल थिंग, या ये बहुत हेक्टिक होता है. इसीलिए कंपनी क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस होती है. प्रोस्पेक्टस क्या होती है, एक छोटी सी बुक होती है, थिन बुक होती है, एक पतली सी, उसके अंदर कंपनी की पूरी जानकारी होती है. अब जिन जिन को वो जानकारी चाहिए वो लोग उस पर्टिकुलर बुक में से ओपन करके सारी जानकारी ले सकते हैं. ठीक है, इसी बुक को हम बोल देते हैं प्रोस्पेक्टस. आइए देखते हैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से एग्जैक्टली प्रोस्पेक्टस क्या होना चाहिए. Now, when a public company is collecting capital by issuing shares to the public, has to issue a document called prospectus. Prospectus is a document which contains information about various aspects about the company and invites the investors to buy the securities offered by the company. Yes, guys, exactly what is prospectus? Prospectus is a booklet, yeah, we can say it's a document which contains overall information of the company, and on the other hand side, the same booklet, yeah, the same we can say document invites the investors to invest in that particular company. जब भी किसी कंपनी में हमें कैपिटल रेज करना मतलब बढ़ाना होता है, उस टाइम पे कंपनी के मैनेजर्स बोलिए या उस टाइम पे कंपनी के ट्रस्टीज या कंपनी के ओनर्स क्या करते हैं, कुछ शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए निकालते हैं और प्रोस्पेक्टस जैसी एक छोटी सी बुक पब्लिश कर देते हैं जिसमें कंपनी की ओवरऑल इन्फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से जितने भी इन्वेस्टर्स है वेरी क्लियरली उन्हें समझ जाता है कि कंपनी के कितने टारगेट है, पिछले साल उसने कितना प्रॉफिट अचीव किया था, इस साल उसके टारगेट कितने हैं, कितने इन्वेस्टर्स है, कितना उसका मार्केट में रेट चल रहा है, गुडविल, एवरीथिंग इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड इन इट. ठीक है, ये हो जाता है मेरा प्रोस्पेक्टस. आइए देखते हैं अब हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस. Now guys, let's have a look toward कि exactly what are the types of prospectus. चलिए, now let's start with कि exactly what are the types of prospectus. Now let's have a look toward it one by one. The first one is a bridge prospectus. Over here I'm using short form. Another one is shelf prospectus. The next is red herring. Letter of offer, and the last one is offer letter. Okay, we'll do one thing, we can discuss the same one by one. देखिए ये कुछ टाइप होते हैं प्रोस्पेक्टस के, आइए इन्हें वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या होते हैं. चलिए, सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ब्रिज प्रोस्पेक्टस क्या होता है. Now come on page number 56. A public company may it contains main contents of a prospectus in brief. It is attached with the application form issued by the company while offering its securities. A bridge prospectus is issued only in case of a public offer made by a company. अगर मैं ब्रिज प्रोस्पेक्टस की बात करती हूँ तो ये यूजुअली क्या होता है, इसमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है कंपनी का.
ठीक है, कंपनी की डिटेल में जानकारी होती है इसमें। प्लस ये डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर सारे सिक्योरिटीज ऑफर की जाती है। किसको? जनरल पब्लिक को। जनरल पब्लिक को यहाँ पे सारे सिक्योरिटीज ऑफर किए जाते हैं। पूरे ब्रीफ में कंपनी की जानकारी होती है और इसके थ्रू हम लोग जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहे होते हैं। इस टाइप के प्रोस्पेक्टस को हम बोल देते हैं ब्रिज प्रोस्पेक्टस। आइए अगला चेकआउट करते हैं हम लोग कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस एग्जैक्टली क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। A public company may raise funds from the public issuing securities, and when it needs more fund, for every issues, fresh prospectus is to be issued. The process of preparing and registering a prospectus is very time consuming. Thus, instead of preparing fresh prospectus for every issue, a company can prepare shelf prospectus made by a company up to 1 year. चलिए अगर मैं बात करती हूँ शेल्फ प्रोस्पेक्टस की, अगेन शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज अ काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये भी प्रोस्पेक्टस की एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि कंपनी जब भी मार्केट में शेयर बेचने वाली होती है, हर बारी कंपनी को प्रोस्पेक्टस या कंपनी की जानकारी वाली एक बुक इशू करना कंपलसरी होता है। अब कंपनी क्या सोचती है कि हर बार उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिश करना, इशू करना बहुत हेक्टिक है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसलिए कंपनी क्या करती है, एक पूरे साल भर में वो जितने भी शेयर्स इशू करने वाली है या जितने भी सिक्योरिटीज बेचने वाली है, साल भर के लिए एक ही बुकलेट छाप लेती है या एक ही बुकलेट पब्लिश कर देती है, जिसे नाम होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होती है। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस इज अ काइंड ऑफ इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस as it does not include complete particulars of the securities offered or the issue price of the securities being offered. It is usually used at the IPO or for issue done under the book building process. चलिए जैसे कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देख लिया था IPO और वी कैन से बुक बिल्डिंग मेथड। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्शंस होते हैं और सिलेक्टेड चीजों के ऊपर ही ऑक्शंस होते हैं। इसलिए ये जो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस होती है, ये क्या हो जाता है, एक इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस होती है इन शॉर्ट एक इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट। इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर कंपनी के पास में 1000 वैरायटी के शेयर्स है बेचने के लिए, 100 शेयर्स है वैरायटी वाले कंपनी को बेचने के लिए, इसमें कंपनी आपको पूरे 100 शेयर्स की इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देगी जितने वो इस रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में इशू कर रही है। फॉर एग्जांपल सिर्फ 10 अगर वो बेचना चाहती है तो सिर्फ उन 10 की ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे पब्लिश्ड होगी और बाकी के 90 की इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगी। इसीलिए इसे कहा जाता है इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, लेटर ऑफ ऑफर क्या होता है। चलिए, An offer letter is issued to selected group of investors by a company when it makes private placements of securities. Private placements means when a company is offering shares only to a selected group of investors. चलिए बात करते हैं लेटर ऑफ ऑफर की। Over here, very selected persons are there, selected investors. Okay, guys. Now, company is issuing, या company is, we can say, giving लेटर ऑफ ऑफर टू वेरी सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स। सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स क्या हो जाते हैं कि कंपनी जितने भी उसके पास में इन्वेस्टर्स अवेलेबल है उनमें से हार्डली बहुत कम लोगों को इस टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसे हम नाम देंगे लेटर ऑफ ऑफर। कि कंपनी उन्हें पहले एक ऑफर प्रोवाइड करेगी कि मेरे पास में ये स्कीम है, ऐसे है, या जो भी उसकी स्कीम्स एंड टारगेट्स है वो सारा पर्टिकुलर इन्वेस्टर को बताएगी। If they are interested, only then they can purchase. और ये सिर्फ सारे पब्लिक को नहीं पता चलता है, ये सिर्फ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को ही ये बात पता चलती है। चलिए अगला देखते हैं हमारा लास्ट वाला ऑफर लेटर। चलिए ये तो हो गया हमारा लेटर ऑफ ऑफर। और दूसरा, पहले हम उन्हें ऑफर करते हैं कि आप लोग लेना चाहते हो कि नहीं, और बाद में हो जाता है एन ऑफर लेटर इज इशूड। ठीक है, पहले हम उन्हें ऑफर लेटर इशू करते हैं और बाद में मतलब सिलेक्टेड लोगों का एक ग्रुप करते हैं और बाद में उन्हें लेटर सेंड करके इफ दे आर इंटरेस्टेड उनका वी कैन से राइट ले लेते हैं, उनकी राय जान लेते हैं, उनके एडवाइजर्स ले लेते हैं।
तो इन शॉर्ट दीज आर सम टाइप्स ऑफ वी कैन से प्रोस्पेक्टस। ब्रिज प्रोस्पेक्टस, इसमें पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, इसमें सिक्योरिटीज जनरल पब्लिक को ऑफर की जाती है। अगर मैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस की बात करूं तो कंपनी साल भर के लिए एक ही प्रोस्पेक्टस बना लेती है। अब साल भर में उसे कितने भी शेयर्स बेचने हैं, इशू करने हैं, वो हर बारी चेंज नहीं करेगी। एक ही प्रोस्पेक्टस मतलब कि पूरे साल भर वो वही यूज करेगी। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या होता है, कंपनी के पास में वैरायटी ऑफ शेयर्स अवेलेबल है, पर उनमें से वो सिर्फ 10 बेचना चाहती है। दैट्स वाई वो बाकी 90 की इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में नहीं डलवाएगी। इसीलिए ये होता है इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस। ऑफर लेटर और लेटर ऑफर क्या होता है, इसमें सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को सिलेक्ट करके सिर्फ उन्हें ही शेयर्स दिए जाते हैं, उनकी राय उनके मशवरे जानने के बाद में। चलिए अगला देखते हैं। इसी में हम लोग कुछ कंटेंट्स है हमारे, जो कि हमारी लेसन का लास्ट पॉइंट है कि कंटेंट्स ऑफ ऑफर लेटर। आइए देख लेते हैं अब हम लोग, कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। चलिए कंटेंट्स मतलब एग्जैक्टली उसमें क्या क्या आता है ना, कितने उसके पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स उसके पीसेस, वो सब कुछ। चलिए सबसे पहला हम लोग चेकआउट करते हैं कि कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट। द फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन and reports. Yes guys, the first and prime content of your prospectus is information, means overall, yeah, we can say detailed information about the company and its reports. Reports के अंदर क्या आता है कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी की पूरी जानकारी की साल भर में कंपनी का टर्नओवर कितना था, उसके टारगेट्स क्या क्या थे, अचीव हुए हैं क्या नहीं, अलॉन्ग विथ उसके रिपोर्ट की वो सारी चीजें हमने अचीव की है, ये सारा सब कुछ हो जाता है। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बाय प्रूफ के साथ में वो चीजें शो करते हैं। अगर कंपनी चाहे तो बैलेंस शीट शो कर सकती है, कंपनी चाहे मार्केट में उसका गुडविल दिखा सकती है, शेयर मार्केट में प्राइजेस शो कर सकती है। इस प्रकार से कंपनी पूरी इंफॉर्मेशन बता सकती है। चलिए दूसरा कंटेंट देख लेते हैं अब हम लोग प्रोस्पेक्टस का, वो होता है डिक्लेरेशन। चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली डिक्लेरेशन में क्या आ जाएगा। There should be a declaration by the company saying that all the provisions of the Company Act have been complied with and the prospectus does not contain anything contrary to the provision of Companies Act, Securities Regulations Act 1956 and rules and regulations made as under. Okay guys, now the next content of prospectus is declaration. Declaration मतलब कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगा कि वॉट एवर थिंग इज बिन पब्लिश्ड इन पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस इज ट्रू, फेयर या ओके, इसके ऊपर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो। मीन्स वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज देयर इट इज नॉट फेक, वो झूठ नहीं है। जितना भी सब कुछ उसमें पब्लिश किया जाएगा वो फेयर है, पूरा ट्रू है, पूरा करेक्ट है, उसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं डली है। ये सारा हो जाता है डिक्लेरेशन की, कंपनी ने जो भी डाला है वो सारा सब कुछ कंपनी के हिसाब से परफेक्ट है। चलिए थर्ड वाला पॉइंट उसका डिक्लेरेशन वाला चेकआउट करते हैं हम लोग, वो हो जाता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट में क्या आ जाएगा। अ प्रोस्पेक्टस में कंटेन स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्सपर्ट लाइक अ कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, वैल्यूअर, इंजीनियर, relating matters that they have looked into. The expert has to give written consent to issue of prospectus. चलिए अगर मैं फोर्थ वाले की बात करती हूँ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम सीए की बात करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, यहाँ पे क्या किया जाता है कि सीए और सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज के थ्रू कंपनी की बैलेंस शीट्स, कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी का गुडविल, सारे स्टेटमेंट्स बनाकर इस प्रोस्पेक्टस में पब्लिश किए जाते हैं, सो दैट इन्वेस्टर्स शुड कम टू नो कि एग्जैक्टली कंपनी की एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, प्रॉपर्टीज कितने हैं, लोन्स कितने हैं एंड XYZ थिंग्स। ये सारे हो जाते हैं मेरे प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स। आइए फोर्थ वाला जो भी इसमें एक और दिया है वो देख लेते हैं। एनी अदर मैटर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द कंपनीज एक्ट और इफ सम अदर इंफॉर्मेशन कंपनी वांट्स टू पुट अप या कंपनी वांट्स टू पब्लिश, तो वो कंपनी कर सकती है अलग से और कुछ उसे डलवाना हो तो। चलिए ये सारे थे कंपनी के कंटेंट्स
कि सबसे पहले कंपनी की पूरी जानकारी रिपोर्ट्स के साथ, डिक्लेरेशन के जो भी हम डलवा रहे हैं वो पूरा परफेक्ट है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट सीए या सीएस की तरफ से अकाउंट स्टेटमेंट पूरी तरह से प्रिंट आउट किए हुए, ये हो जाते हैं पूरे मेरे कंपनी के कंटेंट्स। चलिए लास्ट वाला पॉइंट चेकआउट करते हैं आपके लेसन का, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इन रिलेशन टू प्रोस्पेक्टस। चलिए, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स इन रिलेशन टू प्रोस्पेक्टस। ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस टू बी मेड पब्लिक। ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस क्या, ये जो भी प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट किया जा रहा है, बन रहा है, वो जनरल पब्लिक के लिए होता है, जस्ट टू अट्रैक्ट देम टुवर्ड देयर कंपनी, इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा, साइंड बाय डायरेक्टर्स। इसके अंदर पहला तो होता है कि जो भी उसका ड्राफ्ट है, प्रोस्पेक्टस क्यों बना है, लोगों को अट्रैक्ट करने, इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट, साइंड बाय डायरेक्टर्स। इस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस के ऊपर सिग्नेचर किसकी होती है, उस कंपनी में काम करने वाले डायरेक्टर्स की, जो पूरी कंपनी को मैनेज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, आरओसी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाके आपके प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, आपके प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी होता है। नेक्स्ट, डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। एज आई टोल्ड यू कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस के हिसाब से साल भर के लिए आप एक ही प्रोस्पेक्टस बना लेते हो। अगर हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो अगर हम लोग पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस बना रहे हैं तो उसमें डेट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे कि आपने डेट मेंशन करनी है कि आप अप्रैल में बना रहे हो, मई में, जून में, जब भी आप बना रहे हो, उस प्रकार से उसकी डेट उसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट, इशूइंग प्रोस्पेक्टस टू द वी कैन से पब्लिक। चलिए, अब अगर बात आती है प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू करने की, तो प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशूड टू द पब्लिक विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्टरिंग अ कॉपी विद आरओसी। जब आपकी पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन इस रजिस्ट्रार के ऑफिस में कर चुके हो, उसके 90 डेज के अंडर में आप आपके शेयर्स बोलिए, प्रोस्पेक्टस बोलिए, मार्केट में बेचने के लिए निकाल सकते हो। चलिए, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। इफ अ प्रोस्पेक्टस इज इशू इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द अबव मेंशन्ड प्रोविजंस, द पेनल्टी अलाउज। अगर ये ऊपर मैंने जो भी बताया कि इन्फॉर्मेशन ट्रू होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, अगर आप वो चीजें नहीं कर पाते हो तो बट ऑफ कोर्स आपको फाइन चार्ज होगा, पेनल्टीज होगी। क्या फाइन होगी और क्या पेनल्टी होगी, लेट्स सी। द कंपनी शैल बी लायबल टू पे फाइन बिटवीन 50,000 एंड 3 lakhs। अगर आप इस प्रकार की कोई गलती करते हो तो आपको पेनल्टीज जो हो जाती है, जो भी आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ती है, पेनल्टीज मतलब इन शॉर्ट आपके लिए फाइन, वो होती है आपकी 50,000 से 3 लाख के बीच में आपके ऊपर फाइन चार्ज होता है। नेक्स्ट, एवरी पर्सन हु हैज knowingly involved in issue of a prospectus will be punishable with imprisonment up to 3 years with a fine between 50,000 to 3 lakhs or with both। चलिए, जैसे मैंने बताया कि 50 to 3 lakhs के आपको फाइन रहती है, प्लस those who are involved in this particular जो भी हमने गलत इन्फॉर्मेशन प्रिंट आउट करवाई थी, उसमें जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं उन सभी को 3 साल तक की जेल हो जाती है, ठीक है, अप टू 3 years, और इतनी फाइन भी उन्हें पे करनी पड़ती है। चलिए लास्ट वाला देखते हैं, मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, द स्टेटमेंट इज मिसलीडिंग इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट वेयर एनी इंक्लूजन ऑफ अ स्टेटमेंट और इट्स ओमिशन इज लाइकली टू बी मिसलीड द रीडर। जितने भी हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम बैंक से लेते हैं या जितने भी हमने सीए सीएस से भी इंफॉर्मेशन ली है, इट शुड बी करेक्ट, उसके अंदर भी करेक्टनेस होनी चाहिए। अगर हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो पेनल्टी और फाइन तो हमने देख ही लिए। चलिए, ये सब कुछ तो था मेरा वीकेंड से। 4th लेसन एसपी का ओवर हो चुका है। अगले लेक्चर में हम लोग 5th वाला लेसन स्टार्ट करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।